Previous lecture में we discussed about ethanol और ethyl alcohol. इसके बारे में हमने इसके specific actions, इसका metabolism, इसके breakdown, इसके different जो postmortem और इसके जो stages होती हैं different metabolism की वो हमने काफी डिटेल से डिस्कस की थी along with the treatment and the respective postmortem appearances. आज का जो first topic है that's methyl alcohol or methanol. It is also known as carbinol or wood alcohol, wood naphthalene. Usually it is used in different cleaning materials as a solvent. ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर और मोस्टली जो आपकी वुड इंडस्ट्री है वहाँ पर. Physical properties they make it a very colorless liquid. इसकी usually कोई smell भी नहीं होती, लेकिन ingestion के ऊपर it can produce a burning taste very much similar to ethanol. इसके metabolism के ऊपर अगर बात करें तो this is a cumulative poison and by cumulative it means that इसका added effect आता जाता है जैसे इसकी concentration body के अंदर increase करती जाती है. It's rapidly absorbed in the stomach, intestines के अंदर. Other than that, lungs और skin से भी ये इसके absorption के कुछ evidences मौजूद हैं. Metabolism के अंदर it is basically converted into formaldehyde, which is ultimately converted to folic acid, carbon dioxide, and water. 80% it remains unchanged and it is excreted by the lungs. जो एक film of water होती है alveoli के अंदर वहाँ पर ये मौजूद होता है, and 3 to 5%, which is a very low concentration, that's excreted from the urine. Signs and symptoms are very much similar yet again to ethanol, लेकिन जो ethanol की डिटेल्ड आपको 4 stages बताई गई थी, नार्कोसिस थी उसके अंदर, उस तरह की इसकी डिटेल्ड उसमें symptoms नहीं आते, and they usually occur between 12 to 24 hours after the ingestion. And it also does not cause much of an inebriated state. The fatal dose is about 30 to 240 ml. लेकिन most cases में ये देखा गया कि 60 ml से लेकर 150 ml तक 140 ml तक it can be sufficient to cause death. The fatal period is approximately 24 to 36 hours. Whereas the treatment is concerned, gastric lavage सबसे important चीज़ है और gastric lavage आपने 5% sodium bicarbonate solution से जो है वो आपने परफॉर्म करना होता है. अदर देन दैट आप ओरली भी सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो आप देते हैं इन अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड द सॉल्यूशन इज 2 grams 250 ml. फोलिनिक एसिड, थायमीन, पैराडॉक्सिन ये दिए जाते हैं बिकॉज इसके जो इफेक्ट्स आते हैं वो यूजुअली विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो होती है उसको मिमिक करते हैं. अदर देन दैट फोमिपिजोल और 4-methyl-pyrazole, इट्स बेसिकली अ कंपैरेटिव an inhibitor of alcohol और ये दिया जाता है as an antidote. Other measures जहाँ तक उनका ताल्लुक है, आप जो है चूंकि इसके symptoms ऐसे होते हैं आंखों में तेज रोशनी जो है वो चुभती है, इसलिए the eyes can be covered just to protect them from direct light, and hemodialysis is also performed to ensure that the ingested amount of alcohol is rapidly removed from the body. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से मतलब है कि जो विक्टिम है अगर उसको किसी किस्म के कोई अनयूजुअल सिम्टम्स आ रहे हैं, पेन आ रही है और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो आप उसको सिम्टोमेटिकली आप उसको ट्रीट कर सकते हैं. As far as the postmortem changes are concerned, there are very marked asphyxial changes, जिसके अंदर specifically cyanosis और postmortem staining ये बहुत clearly आपको visible होते हैं बॉडी के ऊपर. Froth from the mouth is very regularly seen as well. And if we talk specifically about the internal organs, तो उसके अंदर GIT के अंदर mucous membranes and the stomach they are seen congested. Lungs के अंदर भी आपको congestion बहुत marked मिलेगी आपको. Liver के अंदर fatty changes usually chronic alcoholism में आते हैं. Kidneys के अंदर आपको tubular degeneration मौजूद होती है. The brain becomes edematous, उसकी जो sulci gyrae की appearance है वो इतनी मार्क और इतनी शार्प नहीं रहती. Also focal hemorrhages are also seen in this case. मेडिको लीगली अगर इसको देखा जाए तो ज्यादातर ये एक्सीडेंटली लिया जाता है. उसकी वजह ये है कि दिस इज कंपैरेटिवली चीपर देन प्रॉपर इथाइल अल्कोहल
और ये ज़्यादातर जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आप लोगों ने खबरों में सुना होगा कि स्पिरिट पी ली या थिनर पी लिया या उससे रिलेटेड कोई जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं उससे रिलेटेड कोई चीज़ जो थी वो ले ली, ताकि उनकी जो क्रेविंग होती है इसकी अल्कोहल की वो दूर हो सके। बट दैट बेसिकली डज नॉट हेल्प इन द reliever of the craving. Other than that, it is also used as an intoxicating beverage, जैसे मैंने अभी बताया आपको। और अक्सर आप लोगों ने अखबारों में भी सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से जो है वो कितने बंदे हलाक हो गए। दैट जहरीली शराब स्पेसिफिकली इथाइल अल्कोहल। सुइसाइड्स एंड होमिसाइड्स भी होती हैं लेकिन दे आर नॉट वेरी कॉमन। और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग के अंदर जो बच्चों की इंजेक्शन है, छोटे बच्चों की, टॉडलर्स की, वो बहुत कॉमन है। आपके अक्सर जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी ये मौजूद होता है, ऑल्दो इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, लेकिन इट इज स्टिल देयर और उसके अंदर भी ये इंसिडेंट्स जो है वो काफी कॉमन होते हैं। क्रॉनिक अल्कोहल पॉइजनिंग, क्रॉनिक अल्कोहल पॉइजनिंग को अल्कोहल एडिक्शन का नाम भी दिया जाता है। और इसके अंदर एक प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर अगर कोई बंदा रेगुलरली एक हैवी अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो ही कैन ऑब्वियसली बी गोइंग इनटू अल्कोहल एडिक्शन। कंटिन्यूड यूज जिससे कि फिजिकली, मेंटली और मॉरली इंसान जो होता है वो डिग्रेड होता है। फिजिकल डिटीरियोरेशन के अंदर आपको एक जो कुछ टिपिकल साइंस आपको नजर आएंगे, उसके अंदर देयर इज लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी बहुत ज्यादा मार्क्ड होती है इसके अंदर, ठीक है। न्यूरोपैथीज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। इम्पोर्टेंस, स्टेरिलिटी मेल्स के अंदर बहुत कॉमन है। फैटी चेंजेस आ जाते हैं लिवर के अंदर और अल्टीमेटली दोज फैटी चेंजेस दे मूव इनटू सिरोसिस ऑफ द लिवर। मॉरल डिजनरेशन के अंदर आपको अक्सर ये केसेस ऐसे मिलेंगे कि जिसके अंदर ये छोटे मोटे जराइम के अंदर आपको ये मुलव्वस नजर आएंगे आपको। और मेंटल डिग्रेडेशन या डिजनरेशन जो होती है, it usually results in dementia. They do not remember what they did in the last 12 hours or 24 hours. इसके ऊपर आगे चल के हम drunkenness में इंशाल्लाह बात करेंगे। There are three common clinical syndromes that can occur due to chronic alcoholism. उसमें ये तीन आपके बहुत कॉमन आपके देखने में आते हैं, जिसमें डिलीरियम ट्रेमेंस, ठीक है, कोर्साकॉफ साइकोसिस एंड एक्यूट हेलुसिनोसिस, ठीक है। डिलीरियम ट्रेमेंस जिस तरह नाम से लग रहा है, डिलीरियम, दिस इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। और इसके साथ हेलुसिनोसिस भी होता है। हेलुसिनोसिस इज बेसिकली अकरेंस ऑफ हेलुसिनेशंस, ठीक है। and this period can last from 3 to 4 to 5 days up till even as well. ये यूजुअली किस वजह से होता है कि देयर इज एन अनयूजुअल बाउट ऑफ ड्रिंकिंग, एक स्पेल आया जिसमें मैसिव अल्कोहल इनटेक होती है, ठीक है। या अचानक से अल्कोहल की इनटेक बंद कर दी जाए और उसके ऊपर कोई इन्फेक्शन हो जाए, एक्यूट, जैसे निमोनिया है या कोई और एक्यूट इन्फेक्शन हो जाए, शॉक किसी इंजरी की वजह से, और लेट एक्सपोजर टू cold. All of these they can ultimately result in delirium tremens. This is basically characterized by an acute attack of insanity, जिसके अंदर जो आपका पेशेंट है उसको नींद नहीं आती, कैन एक्सपीरियंस ट्रेमर्स, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा फील करेगा, या ही माइट फील फेयर, उसको हेलुसिनेशंस नजर आएंगी। हेलुसिनेशंस ऑडिटरी भी हो सकती हैं, विजुअल भी हो सकती हैं। पर्सन अल्टीमेटली ही कैन बिकम वायलेंट, और इस वायलेंट के अंदर he may have homicidal tendencies, किसी को मार भी सकता है और उसको पता भी नहीं होगा कि वो कर क्या है। ट्रीटमेंट इसका सेडेटिव दिए जा सकते हैं, क्लोरप्रोमाजीन इज एन एग्जांपल। अदर देन दैट यू कैन आल्सो एडमिनिस्टर इंट्रावेनस हाइपरटोनिक ग्लूकोज दैट इज गोइंग टू रिलीव द सेरेब्रल एडीमा, जो उसका एक इंट्रा क्रेनियल प्रेशर है उसको रिड्यूस करने के काम आ सकती है। और अगर वो ज्यादा है जिसकी वजह से वो कंप्लेन कर रहे हैं हेडेक की या किसी और ऐसे सिम्टम की, तो CSF को ड्रेन भी किया जा सकता है, लेकिन इन अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। The second one was Korsakoff's psychosis. Korsakoff's psychosis is basically another clinical syndrome. इसके अंदर भी hallucinations आती हैं, the person is disoriented, उसको नहीं पता होता कि वो कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। The recent events memory, that's absolutely lost. उसको नहीं पता होता
कि उसने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा या क्या किया, और उसके ऊपर जो वो चीज करता है वो ये है कि fills the gap by confabulation. Confabulation is basically making up things, making up stories. उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, उसको याद नहीं होता, लेकिन जो पीरियड उसको याद नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, उस पीरियड के दौरान वो अपने से कोई कहानियां उसके अंदर फिट करने की कोशिश करता है, जस्ट टू मेक थिंग्स लुक अप्रोप्रिएट एंड नॉर्मल. लेकिन सर वो इतनी इररेलेवेंट और इतनी आउट ऑफ द वर्ल्ड होती हैं कि आपको पता चल जाता है कि दिस गाय इज फेकिंग इट. दिस स्टेट कैन लास्ट फ्रॉम फ्यू वीक्स, एक महीने तक जा सकते हैं, और वर्स्ट केसेस के अंदर ये एक साल तक भी ये साइकोसिस जो है वो देखा गया. As far as acute hallucinosis is concerned, acute hallucinosis के अंदर भी आपको ज्यादातर जो है वो hallucinations ही मिलेंगी आपको, लेकिन इसके अंदर आपको ज्यादातर auditory hallucinations आपको देखने में मिलती हैं. The person he complains कि उसको चीजें सुनाई दे रही हैं, और ज्यादातर इसके अंदर जो hallucinations आती हैं they are mostly concerned with the fact कि the person he may seem to be under some sort of a threat. ठीक है, उसको टेंशन होती है, उसको ये डर होता है कि कहीं मुझे मार ना दें, और ये इतनी सवेयर होती है कि दिस इज यूजुअली साइकाइट्रिक इमरजेंसी. उस बंदे को आपको जितना अर्ली पॉसिबल हो उसको हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत होती है, ताकि ही कैन कम अंडर सर्वेलेंस एज सून एज पॉसिबल. एक ड्रग इसमें दी जाती है डायसल्फाराम के नाम से. दिस बेसिकली सेंसिटाइजेस द पेशेंट टू अल्कोहल. इसका मकसद ये होता है देने का कि जब आप पेशेंट को ये शुरू करवाते हैं तो द पेशेंट ही टेंड्स टू डेवलप अ डिसलाइकिंग फॉर अल्कोहल, और वो अल्कोहल से दूर भागता है. ये दी जाती है इन अ वेरी स्मॉल एंड अ वेरी ग्रेजुअल अमाउंट, ताकि ये जो एक्यूट हेलुसिनोसिस है ये खत्म हो. व्हाट इज ड्रंकननेस? ड्रंकननेस अंग्रेजी में भी एक बहुत कॉमन टर्म है जो हम लोग यूज करते हैं. इट्स नाउ अ पार्ट ऑफ आवर इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल. Not specifically a medical term. This is basically a condition जिसके अंदर बहुत ज़्यादा alcohol intake की वजह से the person loses control. The person he does not have any कह लो कि control over what he is doing. ठीक है, उसको उसके ख्यालात के ऊपर कोई काबू नहीं रहता. He is unable to perform certain duties that have been designated. और सबसे जो खतरनाक चीज़ है is that he becomes a source of danger. ना सिर्फ अपने लिए वो खतरा होता है, वो कोई भी अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं उनके लिए भी he can become liability of sorts. As far as some of the laws are concerned regarding alcoholism, तो उसके अंदर एक ये prohibition act है जिसको हम enforcement of हद भी कहते हैं. This was started in, या कह लो कि this was presented in 1979, और इसके कुछ sections हैं जो I feel कि तुम लोगों के लिए जरूरी हैं. Section 3 is it's basically dealing with the prohibition of manufacture of intoxicants. Intoxicant के अंदर alcohol भी शामिल है. इसके अंदर दूसरे भी ऐसे substances हैं जो कि आपको इस ability से महरूम कर देते हैं कि आप सही और गलत का फर्क जो आप कर सकते हैं, that is lost. ठीक है. Prohibition of manufacture of intoxicants. This is Section 3 of the Prohibition Order of 1979. इसके तहत if somebody gets caught manufacturing intoxicants, तो that can lead to life imprisonment या फिर कम से कम 2 साल की जेल और 30 कोड़े या stripes जिसको अंग्रेजी में कहते हैं. Section 4 states that owning or possessing certain intoxicants, जिसमें obviously आपका alcohol भी आता है, that can lead to imprisonment of at least 2 years along with fine and whipping as well. Section 6, it states that whoever intentionally or without ikra or israr taking intoxicant by means whatsoever, ठीक है, he is also found guilty of drinking, और उसको भी ultimately उसकी जो सजा उसकी बनती है वो उस हिसाब से उसको दी जाती है. Section 8 जो है that's extremely important कि अगर कोई भी adult बालिग मुसलमान जो है वो he gets caught using liquor by mouth या फिर he is guilty, so he is supposed to be punished by had. हद एक चीज याद रखिएगा, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो सजा दी जाती है that is known as had. ताजीर is punishment that is not according to Quran and Sunnah.
लेकिन वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से जो सजा है वो दी जाती है। सेक्शन 11 उन लोगों के लिए है जो नॉन मुस्लिम्स हैं, ठीक है। whoever being a Muslim is guilty of drinking which is not liable to hurt, ठीक है। उसमें क्या क्या आपके सबसेक्शंस आ सकते हैं कि being a non Muslim citizen of Pakistan he is found guilty of drinking, या he is a non Muslim लेकिन he is also not a citizen of Pakistan, तो उसके लिए भी जो सजा होती है that is liable by ताज़ीर, एंड सजा यही है कि he is punished with imprisonment, ठीक है। या तो वो 3 साल तक जाएगी या फिर उसको जो है वो whipping उसको मिलती है सजा के तौर पे। The Provincial Motor Ordinance of 1965 में Section 100 states that whoever while driving or attempting to drive a motor vehicle, अगर वो intoxicated है या वो लग रहा है कि he is intoxicated, उसको जो सजा मिलती है that is imprisonment which may extend up to 6 months, और साथ ही साथ उसको 1000 रुपया फाइन या फिर दोनों उसको जो है वो सजाएं इकट्ठी भी दी जा सकती। Other than that, if somebody has been found guilty of doing this offense previously, तो उसके लिए जो सजा है वो भी imprisonment है, that can go up to 2 years depending upon उसकी जो specific उसकी situation है, या फिर उसको फाइन जो है वो भी किया जा सकता है, या फिर उसको दोनों सजाएं जो हैं वो दी जा सकती हैं। This is extremely important, drinking or driving. As far as the medical examination of an alleged alcoholic is concerned, तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने लेनी है that is consent. Consent is extremely important. ठीक है? Consent के अंदर you have to define the purpose कि आप क्यों ये examination carry out करना चाह रहे हो, आप किस बेस के ऊपर आपको शक पड़ रहा है कि this person has consumed alcohol या फिर he is a chronic alcohol abuser. In case the patient is unconscious, immediate examination जो होता है that is performed, ताकि in case he needs some sort of an emergency medical treatment, तो आप उसको उसी वक्त prompt medical treatment जो है वो आप उसको start करवा दो। Examination जो है आपका, जो जिस तरह एक typical medical examination होता है, इसके अंदर भी आपके जो होते हैं वो 2 मेन आपके स्टेप्स होते हैं, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ सैंपल्स भी लिखा गया, तो collection of samples is also an important part of this examination of an alleged alcoholic person. हिस्ट्री के अंदर आप क्या पूछेंगे, आखिरी जो खाना उसने खाया वो कितने बजे खाया है, कब खाया है, और सबसे अहम चीज कि क्या खाया, ठीक है। इसके अलावा अगर वो कोई मेडिसिन यूज कर रहा है तो वो कौन सी मेडिसिन है, कितनी डोज में लेता है, किस टाइम पर लेता है, ये बहुत अहम है, कितनी क्वांटिटी में लेता है। अदर देन दैट कोई उसको कोई नोन उसको कोई डिजीज है, कोई कोमोबिडिटी, स्पेसिफिकली उसको ब्लड प्रेशर, आपका डायबिटीज या कोई ऐसी चीज इसके अलावा। और in the end you have to, when you're done with all the history and other important points, in the end you ask about the amount of drink that he has taken, ठीक है, उसने क्या पिया, कितना पिया, किस टाइम पर पिया, ठीक है। ये बहुत अहम सवाल होते हैं जो आपने हिस्ट्री में पूछने होते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन की तरफ मूव करते हैं, तो फिजिकल एग्जामिनेशन को आप डिवाइड कर लो जनरल एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, सिस्टेमिक एग्जामिनेशन और लोकल एग्जामिनेशन। जिस तरह के टिपिकल क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम देखते हैं कि हम इसको इस तरह से डिवाइड कर लें, ठीक है। जनरल अपेयरेंस के अंदर आपने उसकी जो स्टेट ऑफ ड्रेस है वो आपने देखनी है कि उसके कपड़ों के क्या हालात हैं, ठीक है। इसके अलावा यू हैव टू लुक फॉर सर्टेन अदर साइंस, जिसमें कोई वोमिटस तो नहीं उसके कपड़ों के ऊपर लगा हुआ, ठीक है, या फिर कोई उसके सॉइलिंग, फीकल सॉइलिंग तो नहीं हुई उसकी, ठीक है। यू हैव टू लुक फॉर एक्सटेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल के वो बंदा कितना अपने आप को कंपोज रख रहा है, यू हैव टू लुक फॉर दैट, ठीक है। टेक हिज टेम्परेचर, पल्स, जो उसके नॉर्मल वाइटल्स होते हैं, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, उसकी स्किन देख लें, ठीक है, उसकी स्किन कितनी वार्म है, ठीक है, उसके ऊपर कोई पर्सपिरेशन के साइंस है वो देख लीजिए, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्स इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके अकोमोडेशन देखिए ताकि आपको पता चले कि उसकी अल्कोहल की, आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि उसकी अमाउंट ऑफ अल्कोहल उसने कितनी इंजेस्ट की और कितनी देर पहले की है उसने। एग्जामिन हिज एयर्स, बिकॉज अक्सर आपको पता होगा कि एयर के इश्यूज के अंदर you experience issues with balance, so take a good look at his ears, कोई उसके hearing impairment है वो देखें, कोई उसके कानों में से discharge है पस का वो देख लीजिए, ठीक है।
उसका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन देखना बहुत जरूरी है। उसके लिए यू ट्राई टू मेक हिम वॉक ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, देखो कि वो खड़ा कैसे हो रहा है, उसको किसी सपोर्ट की, किसी सहारे की जरूरत तो नहीं है। आस्क हिम टू अनबटन एंड बटन हिज शर्ट, ताकि उसकी आपको कोऑर्डिनेशन का आइडिया हो जाए। और एक फिंगर नोज टेस्ट जो है वो किया जाता है, और उसके अंदर आप अपनी फिंगर जो है वो ऐसे सामने रखते हो, आस्क जो भी आपका विक्टिम है, जो आपका बंदा है जिसको आपने पकड़ा है, you ask him to touch the tip of your finger and then take it back to his own nose, ठीक है, you repeat it। साथ ही साथ आप फिंगर की जो लोकेशन है उसको आप चेंज करते जाते हो, ताकि आपको उसकी कोऑर्डिनेशन का एक बेहतर तरीके से आइडिया हो जाए। The third thing is that you have to collect certain samples. Sample collection बहुत जरूरी है इसके अंदर, because ये samples आप लेंगे, इनको आप लैब में या PFSA में आप भिजवाएंगे, और वहाँ पर जो specific amount है उसके ब्लड के अंदर अल्कोहल की, वो आपको पता चलेगी। सो दिस इज गोइंग टू एक्ट मोर एज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ऑल योर एग्जामिनेशन दैट यू हैव परफॉर्म, ठीक है। और ये इसकी बहुत अहम और इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। स्टमक वॉश, अगर उसने कोई वॉमिटस किया है तो वॉमिटस ले लोगे आप, ठीक है। अनकॉन्शियस है या आपको फील होता है कि वो पूरी तरह से अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो यू परफॉर्म अ स्टमक वॉश। स्टमक वॉश के जो कंटेंट्स होते हैं उनको आप भिजवा देते हो PFSA और हैविंग अ लुक, और उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ अल्कोहल है वो आपको ताकि मिल जाए। ब्लड लिया जाता है अप्रोक्सीमेटली 5 cc, ठीक है, उसके अंदर अल्कोहल दिखी जाती है। यूरिन 10 to 15 ml लिया जाता है, ताकि उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ अल्कोहल है वो ले ली जाए। इसके अलावा कुछ बुक्स के अंदर एक चीज मेंशन की हुई थी, ब्रीदलाइजर कहते हैं इसको। Breathalyzer basically it gives you an estimate of the amount of alcohol that is present in your breath, ठीक है। एक ये मशीन लगाई जाती है आपके मुंह के साथ, ओरल कैविटी के साथ, the person is asked to breathe out। उसके अंदर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो होती है दैट इज एक्सेप्टेबल। हमारे यहाँ पे तो वैसे इट्स एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, लेकिन बाहर के मुल्कों में दे गिव यू अ स्पेसिफिक वैल्यू, जिसके ऊपर अगर वो चली जाती है तो यू आर नॉट अलाउड टू ट्राई, ठीक है। उसको ब्रीथलाइजर कहते हैं, बिकॉज हमने अभी पढ़ा कि मेथनॉल जो है उसकी 80% जो एक्सक्रीशन है दैट occurs थ्रू द लंग्स, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप देयर आर